أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने सूरतुल वाक़िआ आयत नंबर 1 से आयत नंबर 56 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। और सबसे पहले इन आयात का तर्जुमा और फिर तफसीर आपके सामने बयान करेंगे।
اذا وقعت الواقعہ، اذا جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، جب واقع ہو جائے گی، الواقعہ واقع ہونے والی، لیسا نہیں ہے، لوقعتها اس کے واقع ہونے میں، کاذبۃ کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس کے وقوع کی بات جھوٹی، خافضۃ رافعہ، خافضہ کسی کو پست کرنے والی ہوگی، خافضہ کا معنی کیا، کسی کو پست کرنے والی ہوگی، رافعۃ اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، اذا جب، رجا رجت ہلا دی جائے گی، الارض زمین کو، رجا سخت ہلایا جانا، جب کہ ہلا دی جائے گی زمین کو سخت طریقے سے، وبست الجبال بستا، وبسا اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، الجبال و پہاڑ، بستا خوب ریزہ ریزہ کیا جانا، فکانت بس وہ پہاڑ ہو جائیں گے، ہباء غبار، منبثا پھیلا ہوا، تو وہ ہو جائیں گے غبار اڑایا ہوا، وکنتم اور تم ہو جاؤ گے، ازواجن اقسام ثلاثہ تین، اور تم ہو جاؤ گے تین قسموں پر، اصحاب المیمنہ بس دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے، واصحاب المشأمہ اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ اور کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، والسابقون السابقون اور سب سبقت کرنے والے، وہ تو سب آگے ہی بڑھنے والے ہیں، اولئک المقربون یہی لوگ مقربین میں سے ہے، قریب کیے ہوئے ہیں، فی جنات النعیم نعمت والی جنتوں میں، ثلۃ بہت بڑی جماعت ہے، من الاولین پہلے میں سے ہوگی، بہت بڑی جماعت پہلے میں سے ہوگی، وقلیل اور بہت تھوڑے سے، من الاخرین دوسرے میں سے ہوں گے، اور تھوڑے بہت تھوڑے سے دوسرے میں سے ہوں گے، علی سرر موضونہ، موضونہ علی سرر ایسے تختوں پر، موضونہ جو کہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، وہ بیٹھے ہوں گے، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، متکئین سب ٹیک لگانے والے ہوں گے، علیہا ان پر، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، تکیہ لگانے والے ہوں گے ان پر آمنے سامنے، یطوفون چکر لگائیں گے، وہ چکر نہیں صرف چکر لگائیں گے، ٹھیک ہے، علیہم ان پر، ولدان ایسے لڑکے، مخلدون جو سب ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جانے والے ہیں، چکر لگائیں گے ان پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے، بیاکواب آبخوروں کے ساتھ، وہ اباریق اور سراحیوں کے ساتھ، گلاسوں اور سراحیوں کے ساتھ، وکأس من معین، وکأس اور لبریز جام، من معین شراب کے بہتے ہوئے چشمے سے، اور سراحیوں کے ساتھ، اور لبریز جام ہوں گے صاف شراب سے، بہتے ہوئے چشمے کے شراب سے، لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، یہ الفاظ تھوڑے سے خراب ہو گئے ہیں، یہ ولا ہے، ٹھیک ہے، یہ الف جو نیچے لکھا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ ہے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ تو وہ سب سر درد میں مبتلا کیے جائیں گے اس سے، ولا ينزفون اور نہ وہ سب مدہوشی میں مبتلا ہوں گے، وہ اس سے سرگرداں نہیں ہوں گے اور نہ کوئی بےہودہ بات کریں گے، یعنی مدہوشی کی حالت میں نہیں ہوں گے، وفاکہۃ اور پھل ہے، مما اس میں سے، یتخیرون جو وہ سب پسند کریں گے، ولحم طیر اور گوشت پرندوں کا، مما یشتہون اس سے جو وہ سب چاہیں گے، وحور عین اور حوریں موٹی آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون جیسے موتی ہو چھپا کر رکھے ہوئے، جزاء
یہ بدلہ ہے بما کانوا یعملون، اس کا جو وہ سب عمل کرتے رہے۔ لا یسمعون، وہ سب نہیں سنیں گے اس میں لغوا، کوئی بےہودہ گفتگو، ولا تأثیما، اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات، الا قیلا سلاما سلاما، مگر ایک پکار ہوگی کہ سلامتی ہو سلامتی ہو۔ اصحاب الیمینی، اور دانے ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا ہی خوب ہے اصحاب الیمین دانے ہاتھ والے، کی صدر مخضود، بیریوں میں کانٹے دور کی ہوئی، یعنی ایسے بیریوں میں جن سے کانٹوں کو کیا کیا گیا ہوگا، دور کیا ہوگا۔ وطلح منضود، اور کیلوں میں منضود تہ بتہ لگے ہوئے، تہ بتہ لگے ہوئے کیلوں میں، وظل ممدود، اور سائے میں لمبا کیا ہوا یعنی پھیلا ہوا، وماء مسکوب، اور گرائے جانے والے پانی، وفاکہۃ کثیرۃ، اور پھلوں میں ہوں گے، کثیرۃ کثیر مقدار کے پھلوں میں ہوں گے، لا مقطوعۃ، نہ ختم کیے جانے والے، ولا ممنوعہ، اور نہ روکے جانے والے، نہ ختم کیے جانے والے اور نہ روکے جانے والے، وفروش، اور بسترے میں ہوں گے، مرفوعہ، بلند کیے ہوئے، ان انشأناہن، بے شک ہم نے پیدا کیا ان حوروں کو، انشاء خاص طور پہ پیدا کرنا، فجعلناہن، پھر ہم نے بنا دیا انہیں، ابکارا کنواریاں، عربن پیاریاں، اترابا اور ہم عمر، لاصحاب الیمین داہنے ہاتھ والوں کے لیے، ثلۃ ایک بڑی جماعت من الاولین پہلے میں سے، وثلۃ اور ایک بڑی جماعت من الاخرین آخرین میں سے، یعنی پچھلوں میں سے ہے، واصحاب الشمالی، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، کیا ہی برے ہیں برے بائیں ہاتھ والے، فی سموم، سخت گرم ہوا یعنی لو میں، وحمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وظل، اور سائے میں ہوں گے، می یحموم، سیاہ دھوئیں کے، لا باردن، نہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، اور نہ خوشنما، انہم کانوا قبل ذلك مترفین، بے شک وہ سب اس سے پہلے تھے مترفین، اسودہ حال کیے گئے ہوئے، بے شک یہ لوگ تھے اس سے پہلے دنیا میں آسودہ حال، وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اور وہ سب اصرار کیا کرتے تھے، عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے گناہ یعنی شرک پر، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے تھے، اِذَا مِتْنَا، کہ جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم ہو گئے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا بے شک ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور بلا کیا ہمارے سب پہلے آبا و اجداد بھی، قل ان الاولین والآخرین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک سب پہلے والے اور سب پچھلے جو ہے، مجموعون، ضرور سب جمع کیے جانے والے ہیں، الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے لیے، ایک معلوم دن کے معلوم مقررہ وقت پر، ثم انکم ایھا الضالون، پھر بے شک تم اے سب گمراہو، المکذبون، سب جھٹلانے والو، لاکلون، تم ضرور سب کھانے والے ہیں، من شجر من زقوم، درخت سے توہر کے، فمالئون، پھر تم سب بھرنے والے ہو، منہا اس سے، البطون پیٹوں کو، فشاربون، پھر سب پینے والے ہو، علیہ اس پر، من الحمیم کھولتے پانی سے، فشاربون شرب الہیم، پھر سب پینے والے ہو، شرب الہیم پیاسے اونٹوں کے پینے کی طرح، پیاسے اونٹوں کے پینے کی طرح، ھذا نزلہم، یہ ان کی مہمانی ہوگی، یوم الدین قیامت کے دن، یہ ان کی مہمانی ہوگی قیامت کے دن۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔
इस मुबारक सूरत का नाम जो है सूरत वाक़िया है, और ये जो शुरू में ही लफ्ज आया है अलवाक़िया, इसी से लिया गया है। क़यामत के मुख्तलिफ नाम है, उनमें से एक नाम वाक़िया भी है। इसको अत्ताम्मतुल कुबरा अल क़ारिआ भी कहा गया। मक्की जिंदगी में सूरह ताहा की बात नाजिल हुई, 96 आयत और 3 रुकू पे मुश्तमिल है। सूरह यासीन की तरह इसमें भी दीन के 4 उसूल जो है बयान किए गए, तौहीद और उसके दलाइल, रिसालत, वक़ूअ क़यामत और जज़ाए अमल, और ख़ास तौर पे जज़ाए अमल के एतबार से इंसानों की 3 ग्रोहों में तकसीम, और नंबर 4 कुरान हकीम की अजमत और सदाकत। ये चारों उसूल सूरह यासीन में तफसील के साथ बयान हुए, और यहाँ पर इनका जिक्र इख्तिसार के साथ किया गया है। और ये चारों उसूल ऐसे बुनियादी उसूल है, इन पर ईमान लाए बगैर किसी शख्स को हिदायत नसीब नहीं हो सकती। तो ये चारों उसूल, अकायद या मसाइल इस सूरत में बयान किए गए। इसके अलावा अहले जन्नत को मिलने वाले बाज़ इनामात और मुजरिमों को मिलने वाली बाज़ सजाओं का भी जिक्र आ गया है। रिवायत में आता है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरज़ुल मौत में मुब्तला हुए, तो खलीफे वक्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी इयादत के लिए गए। आपने पूछा, मा तश्तकी, आपको किस चीज की तकलीफ है? तो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि मुझे मेरे गुनाहों और गलतियों की ज्यादा तकलीफ है। फिर पूछा, मा तश्तही, आपकी ख्वाहिश क्या है, यानी आपको क्या चीज चाहिए? उन्होंने कहा, रहमत रब्बी, मुझे मेरे परवरदिगार की रहमत की जरूरत है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, अला अमरुका बितबीबिन, क्या मैं आपके लिए किसी तबीब का इंतजाम ना करूं? उन्होंने जवाब दिया, अब तबीब अमरज़ानी, के तबीब ही ने तो मुझे बीमारी में मुब्तला किया है। मतलब ये कि हकीकी तबीब जो है वो तो अल्लाह ताला है, और बीमारी भी उसी के हुक्म से लाहिक हुई है। तो किसी और तबीब को बुलाएंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए किसी अतिये का हुक्म ना दूं? कहने लगे, ला हाजत ली फीही, मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है। फिर फरमाया, यकून लिबनातिका मिन बादिका, ये वजीफा आपके बाद आपकी बच्चियों के काम आएगा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, अतख्शा अला बनाती, तुझे मेरे बच्चियों की फाका कशी का खतरा है? हालांकि इन्नी अमरतु बनाती यक़रअना कुल्ल लैलतिन सूरत अल-वाक़िआ, मैंने अपनी बच्चियों को तलकीन कर रखी है कि वो हर रात को सूरत अल-वाक़िआ पढ़ लिया करे, क्योंकि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा है, मन क़रअ सूरत अल-वाक़िअति कुल्ल लैलतिन लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदा, कि जो आदमी हर रात सूरह वाक़िआ की तिलावत कर लिया करेगा, उसको कभी फाका नहीं आएगा। तो बहरहाल अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कामिलुल ईमान इंसान थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे यकीन था, तो उन्होंने अपनी बच्चियों को भी यही तरतीब दी, तरबियत दी थी। अनस, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और बहुत से ताबिईन से भी मनकूल है कि अपनी औलादों को सूरह वाक़िआ सिखलाओ, क्योंकि ये सूरतुल गिना है। इसकी वजह से अल्लाह ताला गिना अता करता है, फाक़े से बचाता है। अगर किसी की ज़ाहिरी हालत कमज़ोर भी हो, तो सूरह वाक़िआ को पढ़ने वाले को सुकून क़ल्ब ज़रूर हासिल होता है, वो किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होता, वो किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होता। तो इरशाद हुआ, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब वाक़ई हो जाएगी, वाक़ई होने वाली, इससे मुराद क़यामत है, यानी जब क़यामत कायम होगी। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, और उसके वाक़ई होने में कोई झूठ भी नहीं है, यानी ये जरूर वाक़ई होगी। इसका माना ये भी हो सकता है कि वक़ूअ क़यामत को कोई भी जुटला नहीं सकता। आज तो बाद लोग इसका इनकार करते हैं, लेकिन जब ये आ जाएगी तो फिर कैसे तकज़ीब कर सकेंगे? उस वक्त किसी को मजाल इनकार नहीं होगी। बात फरमाते हैं कि काज़िबा है तो फाइल का सीगा, मगर यहाँ पर मस्तर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी क़यामत के वक़ूअ में कोई झूठ नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। ये क्या है?
एक हकीकत है। फिर फरमाया खाफिदतुर राफिआ, ये क़यामत पस्त करने वाली भी है और बुलंद करने वाली भी है। ये मुशरिकों, काफिरों, अल्लाह की बागियों और मुल्हिदों को जहन्नुम की पस्तियों में उतार देगी, जबकि ईमान, तकवा और नेकी वालों को बुलंद दर्जात तक पहुंचाएगी। गोया क़यामत बाज को पस्त करने वाली और बाज को बुलंद करने वाली चीज है। और ये कब वाक़ई होगी? इदा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, जबकि जमीन को अच्छी तरह हिला दिया जाएगा, उस पर जलजला तारी हो जाएगा, जिससे हर चीज दरम बरम हो जाएगी। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे। वकानत हबाअम मुंबस्सा, और उड़ते हुए गर्द गुबार की तरह हो जाएंगे। सूरतुल वाक़िया में फरमाया वतकूनुल जिबालु कलइहनिल मनफूश, और पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह उड़ते फिरेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि जो शख्स क़यामत अपनी निगाहों से देखना चाहता है, उसे चाहिए कि सूरतुन नबा, सूरतुल तकवीर और सूरतुल वाक़िया पढ़ लिया करे। क़यामत का सारा नक्शा सामने आ जाएगा। क़यामत का एक नाम ताम्मतुल कुबरा, यानी सबसे बड़ा हंगामा भी है। जमीन पर जलजला आ जाएगा। सूरतुल ज़िलज़ाल में है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, और आसमानी सियारे आपस में टुकड़ा के दरम बरम हो जाएंगे। माहिरीन फलकियात भी इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि दुमदार सितारों से अलहदा होने वाले बाज़ टुकड़े पूरी जमीन से भी बड़े बड़े होते हैं। खतरा है कि अगर किसी वक्त कोई टुकड़ा जमीन से टुकड़ा गया तो इस जमीन की ईंट से ईंट बच जाएगी और कोई चीज जो है बाकी नहीं रहेगी। और अल्लाह ताला ने पहले ही खबरदार कर दिया है कि क़यामत का हंगामा वाक़ई होने वाला है। जब ये जमीन टूट फूट का शिकार हो जाएगी, फिर नई जमीन और नया आसमान कायम होगा, हिसाब किताब की मंजिल आएगी, जजा और सजा के फैसले होंगे। तो जब क़यामत वाक़ई होगी, वकुंतुम अज़वाजन सलासा, तो इंसानों, तुम तीन ग्रोहों में तकसीम हो जाओगे। तुम तीन ग्रोहों में तकसीम हो जाओगे। इनमें से दो ग्रोह कामयाब होंगे और तीसरा ग्रोह जो है वो नाकाम होगा। आगे फिर उन ग्रोहों की तफसील भी आ रही है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत वाले दिन तमाम अहले ईमान की 120 सफ़े होंगी, जिनमें से 80 सफ़े सिर्फ इस उम्मत की, 40 सफ़े बाकी तमाम उम्मतों की होंगी। अहले जन्नत आगे फिर दो ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे। एक ग्रोह साबिकून का होगा, जो नेकी में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, और दूसरा ग्रोह असहाब यमीन का होगा, जो साबिकीन से एक दर्जा कम होंगे मगर अहले जन्नत में से होंगे। और तीसरा ग्रोह असहाब शिमाल का होगा, जो नाकाम होकर जहन्नुम में जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। असहाबुल मैमना, तिमा असहाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले क्या ही अच्छे दाएं हाथ वाले हैं। अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ फरमाई, ये कामयाब लोग होंगे। बात फरमाते हैं कि दाएं हाथ वाले वो लोग हैं जिनको अहद अलस्तु के वक्त आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से दाई तरफ से निकाला गया। ये मोमिन होंगे। और बाएं हाथ वाले वो लोग होंगे जिनको आदम अलैहिस्सलाम की बाईं जानिब से निकाला गया। ये काफिर और मुशरिक लोग होंगे। मेराज वाली हदीस में भी आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, तो आपने उनके दाएं और बाएं बहुत से लोगों को देखा। जब आदम अलैहिस्सलाम अपनी दाएं तरफ देखते तो मुस्कुरा देते, जब बाईं जानिब देखते तो रो पड़ते। दरियाफ्त करने पे बताया गया कि दाईं तरफ वाले लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के मोमिन लोग हैं, जबकि बाईं तरफ वाले काफिर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उन लोगों की जहन्नुम रसीदगी पे गमगीन है, और दाईं तरफ के अहले जन्नत को देखकर खुश होते हैं। हदीस में भी आता है कि अहले जन्नत को नामा अमाल दाएं हाथ में और अहले दोजख को बाएं हाथ में मिलेगा। अहले जन्नत को दाईं तरफ रवाना किया जाएगा, जबकि अहले दोजख को बाईं तरफ रवाना किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें अहले जन्नत में से बनाए, अहले जहन्नुम से हमारी हिफाजत फरमा दे। इसीलिए फरमाया व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, बाईं तरफ वाले क्या ही बुरे हैं
बाई तरफ वाले, क्योंकि वो तो जहन्नुम के गड्ढे में उतरने वाले हैं। वस्साबिकून अस्साबिकून। फिर तीसरे गुरु का जिक्र फरमाया कि सबकत करने वाले तो सबकत करने वाले ही है, उनकी शहादत का क्या पूछना। फरमाया उलाइकल मुकर्रबून, ये तो मुकर्रब लोग हैं जिनको अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्ब हासिल है। इन लोगों के अंजाम के मुतालिक फरमाया फी जन्नतिन नईम, ये तो जन्नतों के नेमतों के बागों में होंगे। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में बहुत ज्यादा नेकियां करते थे। इनका मर्तबा अस्हाबी यमीन से बढ़कर होगा। इसीलिए फरमाया कि ये मुकर्रबीन इलाही लोग हैं, पहले जमानों में इनकी तादाद ज्यादा होगी। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, पहलों में इनका गुरूह कसीर है, व कलीलुम मिनल आखिरीन, और पिछलों में इनकी तादाद थोड़ी है। पहले और पिछले लोगों से मुतालिक मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा है। बात फरमाते हैं कि पहलों से मुराद पहली उम्मत थी, यानी साबिका उम्मतों की नेकी में सबकत करने वाले लोग ज्यादा होंगे, जबकि इस आखिरी उम्मत में उनकी तादाद कम होगी। दूसरी तरफ इस आखिरी उम्मत को तमाम साबिका उम्मत पे फजीलत भी बख्शी गई। फरमाया कि आखिरी उम्मत की अफजलियत में तो कोई शुबा नहीं है, मगर इनमें साबिकीन की तादाद पहली उम्मतों की निस्बत कम ही होगी। असल बात यह है कि साबिकीन में अव्वलीन लोग अम्बिया अलैहिस्सलाम है, फिर सिद्दीकीन, शुहदा है, क्योंकि सारे अम्बिया और रसूल भी इस गुरोह में शामिल है, लिहाजा उनकी तादाद का बढ़ जाना यह अजीब नहीं है। जबकि आखिरी उम्मत का तो एक ही आखिरी नबी और रसूल है। मौलाना कासिम नानूतवी और शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी सब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकातीब में यही लिखा है कि साबिकीन में चूंकि नबी और रसूल भी दाखिल है, लिहाजा पहली उम्मतों के साबिकीन का पल्ला जो है वो भारी होगा। बात फरमाते हैं कि साबिकीन से साबिका उम्मतों के लोग मुराद नहीं है, बल्कि इसी उम्मत के अव्वलीन और आखिरीन लोग मुराद है। इसका मतलब ये है कि उम्मत मोहम्मदिया के पहले दौर के लोगों में साबिकीन की तादाद ज्यादा है और पिछले दौर के लोगों में निस्बतन कम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुल कुरूनि क़र्नी सुम्मा लज़ीना यलूनहुम सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, कि बेहतरीन जमाना जो है वो मेरा जमाना है, फिर मुझसे मिलने वाले लोगों का, फिर उनसे मिलने वाले लोगों का। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत की वजह से जो मर्तबा असहाबे किराम को हासिल है वो दूसरों को हासिल नहीं हो सकता। इसी तरह ताबीन और तबा ताबीन का जमाना बाद के अदवार के इदारे से बेहतर है। लिहाजा उनमें साबिकीन की तादाद तो ज्यादा होगी, अलबत्ता बाद के अदवार में असहाब यमीन तो बहुत होंगे, मगर साबिकीन ही कम होंगे। और ये बात बिल्कुल करीन क्यास भी है। इमाम इब्न कसीर ने भी फरमाया कि इससे ये मुराद है कि हर नबी के दौर की पहली जमातों और में साबिकीन की तादाद ज्यादा होगी और बाद में आने वाले लोगों में साबिकीन कम होंगे। वजह यह है कि नबी के करीब होने की बरकत से मुकर्रबीन बकसरत होते हैं, फिर बाद में कमजोरी आ जाती है और पहले वाली बात नहीं रहती। बस ये भी फरमाते हैं कि साबिकीन के गुरों से वो लोग मुराद है जो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे। ये लोग आगे पीछे नहीं होंगे, बल्कि सीधे एक ही कतार में एक दूसरे के हाथों पर हाथ डाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ऐसे लोग पहलों में तो बहुत होंगे, मगर पिछलों में उनकी तादाद कम होगी। बात बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि मुकर्रबीन इलाही की निगाह अपने आगाज पर होती है, यानी उनकी नजर अपनी तख्लीक के दिन पर होती है। ये फरिश्ता पूछता है कि परवरदिगार ये शख्स नेक बख्त होगा या बदबख्त, तो उसको बता दिया जाता है, तो उसे अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेता है। तो मुकर्रब को हमेशा इसी बात की फिक्र रहती है कि पता नहीं उस दिन मेरे हक में खुशबख्ती का फैसला होता है। वो फरमाते हैं कि इसके बरखिलाफ अबरार की निगाह हमेशा लफ्ज इंतहा पर होती है। जब फरिश्ते इंसान की रूह कब्ज करने के लिए आता है फरिश्ता,
تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ پروردگار میں اس شخص کی روح کو ایمان کے ساتھ نکالنا ہے یا کفر کے ساتھ؟ تو اس وقت فرشتے کو انسان کی قیمت کا حال بتا دیا جائے گا. تو ابرار لوگ ہمیشہ اس طرف دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں جامع مسجد بات سمجھ آ گئی؟ تو ابرار لوگ جو ہے ہمیشہ اس بات کی طرف دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوگا. تو مقرب اور ابرار میں یہ فرق ہے. مقرب اور ابرار میں یہ فرق ہے. تو یہ دونوں گروہ خدا خوفی، نیکی اور ایمان کی وجہ سے کامیاب ہونے والے ہیں. ایمان کی وجہ سے کیا ہونے والے ہیں؟ کامیاب ہونے والے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، آواز کہاں سے بند ہو گئی تھی؟ آواز ذرا مجھے بتا دیں. جب فرشتہ جو ہے انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ پروردگار، میں نے اس شخص کی روح ایمان کے ساتھ نکالنا ہے یا کفر کے ساتھ؟ تو اس وقت فرشتے کو انسان کی قیمت کا حال بتا دیا جاتا ہے. تو ابرار لوگ ہمیشہ اس طرف دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہوگا. تو مقرب اور ابرار میں یہ فرق ہے. بہرحال یہ دونوں گروہ خدا خوفی نیکی ایمانی کی وجہ سے کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ علی سرر موضونہ، سبقت کرنے والے اللہ کے مقربین سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پہ بیٹھنے والے ہوں گے. یہ تخت ہیرو اور جواہرات سے مزین ہوں گے جس کی وجہ سے دیکھنے میں بھی نہایت دلکش ہوں گے، اور ان کے بیٹھنے کی کیفیت یہ ہوگی متقین علیہ متقابلین، تکیہ لگا کے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے. ہر جنتی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگا اور کسی ایک کی وجہ سے دوسرے کی طرف پش نہیں ہوگی. کسی ایک کی دوسری طرف پش نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ کسی کی طرف پش کر کے بیٹھنا معیوب معلوم ہوتا ہے. لہذا جنت میں یہ کیفیت کہیں نہیں ہوگی بلکہ سب ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے. ان پر نہایت ہی خوشی کا عالم ہوگا. وہ بیٹھے ہوں گے اور ان کی خدمت کے لیے یطوفون علیہا ولدان مخلدون، یطوف علیہ ولدان مخلدون، ان کے سامنے لڑکے پھریں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ایک تو وہ خدمت کے لیے ہر وقت مستعد رہیں گے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ہمیشہ ایک ہی حالت یعنی بچپن کی عمر میں ہی رہیں گے، اس دنیا کی طرح جوان اور پھر بوڑھے نہیں ہو جائیں گے. یہ بچے کون ہیں؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ مشرکین اور کفار کے بچے ہوں گے جو سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گئے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حوروں کی طرح یہ بچے بھی جنت کی مخلوق ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کی خدمت کے لیے وہی پیدا کرے گا. یہ بچے جو ہے سابقین کے سامنے پھریں گے بیاکواب و اباریقہ، جن کے ہاتھوں میں گلاس اور سراحیاں ہوں گی. اکواب جو ہے کوب کی جمع ہے جس کا معنی گلاس یا خورا ہوتا ہے. بریق ابریق کی جمع ہے، اس کا معنی سراحی یا کوزہ ہے، اور یہ لفظ لوٹے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال ان چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں گلاس اور سراحیاں ہوں گی. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور لبریز شراب کے بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، جام ہوں گے.
सूरत उद्दहर में अल्लाह ताला ने इन खूबसूरत बच्चों की तारीफ फरमाई, वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा। उन पर नौ उम्र लड़के फिरेंगे उन पर जो हमेशा रहने वाले होंगे। जब तुम उन पर निगाह डालोगे तो ख्याल करोगे कि ये बिखरे हुए मोती है। ये क्या है? बिखरे हुए मोती है। बहरहाल फरमाया कि नौ उम्र लड़के होंगे जो हाथों में सुराहिया और गुलास लिए अहले जन्नत की खिदमत में मामूर होंगे। और वो शराब इस दुनिया की शराब की तरह अकल को जायल करने वाली नहीं होगी, जिसको मुसलसल लोग बेहूदगी और दंगा फसाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उतर आते हैं उस पर। बल्कि वो ऐसी उम्दा शराब होगी, ला युसद्दाऊन अन्हा वला युनज़िफून, ना तो उससे सरगर्दानी होगी, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, वला युनज़िफून, और ना इसे पीने वाले को कोई बेहुदा बात करेंगे, इसमें नशे वाली कोई चीज नहीं होगी। अहले जन्नत के होश व हवास बिल्कुल कायम रहेंगे और इसमें हर तरह का लुत्फ और सुरूर होगा। दुनिया की शराब नोशी से इंसान होश व हवास को बैठता है, वही तबाही बकता है और कई दूसरे गुनाहों में मुलविस हो जाता है। इसीलिए शरीयत ने शराब नोशी पे हद जारी की है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स दुनिया में शराब नोशी करेगा वो आखिरत में शराब तहूर से महरूम होगा। साबिकीन के लिए शराब तहूर के अलावा फरमाया वफ़ाकियत मिम्मा यतखयरून, फल होंगे जिनको अहले जन्नत पसंद करेंगे। और जन्नती के लिए उसका मनपसंद फल जो है वो मुहैया किए गए। और इसके हुसूल के लिए उसे कोई तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि जैसा पिछली सूरत में पढ़ा, ये फल उसके करीब ही होंगे, ना वो खत्म होंगे और ना ही उनके इस्तेमाल से रोका जाएगा। वलहम तैर मिम्मा यश्तहून, और परिंदों का गोश्त होगा जैसा कि चाहेंगे। जाहिर है कि भेड़ बकरी गाय ऊंट के गोश्त की निस्बत परिंदों का गोश्त ज्यादा लजीज और ज्यादा मरगूब होता है। तो साबिकीन के लिए जन्नत में परिंदों का मनपसंद गोश्त भी बाइफरात होगा, जिसे अहले जन्नत हस्ब मंशा इस्तेमाल कर सकेंगे। और फिर इंसान की खुशी की खातिर के लिए उसके जोड़े का जिक्र भी फरमाया, वहूर नईन, गोरी चिट्टी खूबसूरत और मोटी मोटी आंखों वाली औरतें भी होंगी जिनसे अहले जन्नत अपना दिल बहला सकेंगे। ये जन्नत की मखलूक होगी और उनके हुस्न जमाल के मुतालिक फरमाया कामसाल लुइल मकनून, वो गिलाफ में बंद मोतियों की तरह गर्द गुबार से पाक होंगी। ज़ाहिरी और बातिनी हर एतबार से पाकीज़ा औरतें होंगी। जज़ा बिमा कानू यामलून, ये बदला होगा उस काम का जो वो दुनिया में अंजाम देते रहे हैं, और यही जज़ाए अमल है जो वक़ूअ क़यामत का मकसूद है। और ये सब कुछ साबिकीन और मुक़र्रबीन की कमाई का नतीजा है। ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला तअसीमा, वो लोग उस जन्नत में ना कोई बेहुदा बात नहीं करेंगे और ना ही कोई गुनाह की बात करेंगे। इस दुनिया में दोना चाहने के बावजूद इंसान को बहुत सी लघवियात से वास्ता पड़ता है। बाजार में चलते फिरते गाली गलोच, दंगल फसाद, बेहुदा गानों की आवाज कान में ख्वाह मखा पड़ती है। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा, बल्कि वहां पे इल्ला कीलन सलामन सलामा, वहां तो हर तरफ से सलामती की आवाजें ही आएंगी। अहले जन्नत आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे के लिए सलामती की दुआ करेंगे। फरिश्तों की तरफ से भी उन्हें सलाम होगा और परवरदिगार से भी की तरफ से भी सलाम मुन कौल में रब रहीम, सलामती का तोहफा आएगा। तो अल्लाह तला ने तीन में से एक गुरु यानी साबिकीन के इनामात का जिक्र फरमाया है। दूसरे नंबर पे असहाब यमीन वाले आते हैं जिनको उनका नाम है अमाल दाएं हाथ में मिलेगा। उनके बारे में फरमाया वासहाबुल यमीन मा असहाबुल यमीन, और दाएं हाथ वाले लोग उनका तो क्या ही कहना है। उनको भी अल्लाह की रहमत के मकाम जन्नत में मिलेगी और बड़े आराम, राहत और सुकून के साथ होंगे। बड़े आराम, राहत और सुकून के साथ होंगे।
तो ये नेमतें अगरचे साबिकीन की नेमतों से कम दर्जे की होंगी, लेकिन फी जाती ही ये भी कमाल दर्जे की नेमतें होंगी। इमाम इब्न कसीर ने इब्न अबी हातिम मुहद्दिस के हवाले से नकल किया है कि इमाम हसन बसरी से मनकूल है, जब वो कुरान मजीद की तिलावत करते हुए इस आयत पे पहुंचे, अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीनी, तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, कहने लगे अम्मा साबिकून फक़द मज़ा वलाकिन अल्लाहुम्मा जअलना मिन अस्हाबिल यमीन, ये साबिकीन का ग्रोह तो गुजर गया, बे अल्लाह हमें अस्हाब यमीन में ही शामिल कर दे, क्योंकि अगर हम इस ग्रोह में भी शामिल ना हो सके तो नाकाम हो जाएंगे। अब इन अस्हाब यमीन को मिलने वाले इनाम और इकराम के बारे में फरमाया फी सिदर मखदूद, ये लोग कांटे उतारी हुई बेरी के दरख्तों में होंगे। बेरी का फल अगरचे बहुत अच्छा फल है, मगर उस दरख्त की शाखों के साथ कांटे भी होते जो तबीयत में नागवार गुजरते हैं। मगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत की बेरी की दरख्तों पे कांटे नहीं होंगे, लिहाजा जन्नती लोग इन कांटों की तकलीफ से तो मामून होंगे, मगर इसका फल बकसरत होगा जिसे वो इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा फरमाया वतलही ममदूद, ये ते बते केले होंगे। केला भी नहायत उम्दा फल है, बकसरत पाया जाता है, बाद ममालिक में ग़िज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। बाद जगह इतने बड़े बड़े केले होते हैं कि आदमी सिर्फ एक ही केला खाकर सैर हो जाता है। बाद ममालिक में ये ग़िज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। बाद जगह इतने बड़े बड़े केले होते हैं कि आदमी सिर्फ एक ही काला खा के उसका पेट जो है वो भर जाता है। तल्ह कीकर की दरख्त का कीकर की तरह एक दरख्त है, इससे अरब लोग खुश खूब पहचानते हैं। ये दरख्त भी मुराद हो सकता है, और जन्नत में उसके साथ फिर कांटे नहीं होंगे। तो तल्ह का आम माना अकेला ही है। वसीली ममदूद, और जन्नत वाली लंबे सायों में होंगे, वहां पर न धूप होगी न अंधेरा होगा न ही सर्दी होगी, बल्कि दरख्तों के साय में इतने बड़े बड़े दरख्त होंगे कि एक तेज रफ्तार घुड़सवार 100 साल भी उस साय को अबूर नहीं कर सकेगा। सिदरतुल मुंतहा के बारे में सूरह नजम में जिक्र हो चुका है। ये इतना बड़ा दरख्त है जिसकी जड़ आसमान और शाखें सातों आसमान पर है। ये दरख्त आलम इम्कान और आलम वजूब के दरमियान एक संगम की हैसियत रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों के लिए सायों की दलील के तौर पे यही आयत फरमाई वज़िल ममदूद, और फरमाया कि जन्नती लोग लंबे साय में होंगे। जन्नती लोग जो है किस में होंगे? लंबे साय में होंगे। बात समझ आई यहाँ तक? फिर आगे फरमाया वमा मस्कूब, असहाब यमीन बहते हुए पानी में होंगे। मतलब ये कि जन्नत में पाकीज़ा पानी हमेशा जारी रहेगा, उसमें कभी कमी नहीं आएगी। सूरह मोहम्मद में है कि उस पानी में कभी बदबू पैदा नहीं होगी, बल्कि हमेशा तरोताज़ा और खुशगवार रहेगा। इसके अलावा वफा की यतीम कसीरा, वो लोग कसीर फलों में होंगे, यानी उन्हें हर मौसम में मनपसंद फल बगैर किसी मेहनत के अफराद के साथ मुयसर होगा। और फिर ला मकतूआती वला ममनुआ, ये फल ना तो कतः किए जाएंगे और ना रोके जाएंगे। मतलब ये है कि फल इतने बकसरत होंगे कि उनके कम पड़ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी फरमाया कि फल मौजूद हो मगर अहले जन्नत को उनके इस्तेमाल से रोक दिया गया हो। मकाम रहमत के मकीन हर मौसम में अपने पसंद के फल हासिल कर सकेंगे। और साथ में ये भी फरमाया वह फुरूश मरफूआ, ऊंचे दर्जे के बिछोने या बिस्तर होंगे जिन पर असहाब यमीन आराम कर सकेंगे। तो आगे फरमाया इन इंशा, हमने इन औरतों को उठाया है यानी पैदा किया है, ऐसी उठान फजाल ना अबकारा, कि उनको दोशीज़ा बनाया। वो कुंवारी नहायत ही खूबसूरत औरतें होंगी। और बन अतराब असहाबिल यमीन,
मोहब्बत करने वाली और हम उम्र होंगी। दाएं बाएं हाथ वालों के लिए बाएं हाथ वालों के लिए बाज़ औक़ात उम्र का तफावत मर्द और जन के लिए बेरगबती का सबब बन जाता है। लेकिन जन्नत की औरतें मर्दों की हम उम्र होंगी, कुंवारी होंगी, उनसे मोहब्बत करेंगी, तो इनकी दिल लगी में किसी किस्म का तकद्दुर पैदा नहीं होगा। और जन्नती मर्द और जन्नती औरतें नहायत खुशकुन दायमी जिंदगी गुजारेंगे। इमाम इब्न कसीर ने तबरानी के हवाले से नकल किया है कि मज़कूरा औरतें वो औरतें होंगी जिन पर दुनिया में बुढ़ापे की हालत में मौत तारी हुई। इनकी अज़ा इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं, इनकी आंखों से पानी बहता है। इन औरतों को अल्लाह ताला जन्नत के लिए नई उठान में पैदा करेगा। ये सारी नौजवान दोशीज़ा होंगी और अपने ख़ावंदों के साथ मोहब्बत करेंगे। इस हदीस में यह भी आता है कि निसा दुनिया अफजल मिन हुरिन ऐन, कि दुनिया की ये औरतें जन्नत की हूरों से अफजल होंगी। उनकी ये फजीलत उनकी नमाजों, रोज़ों और दीगर इबादत अदा करने की वजह से होगी और उनकी नेकी की वजह से उनका हुस्न जमाल और अखलाक और पाकीज़गी हूरों से बढ़ के होगी। हदीस में आता है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया कि दुनिया की बाज़ औरतें दो दो तीन तीन खवंदों वाली भी होती है। अगर ऐसी कोई औरत जन्नत में चली गई और उसके तमाम शोहर भी जन्नत में पहुंच गए तो ऐसी औरत का मिलाप किस खावंद के साथ होगा। और मैं इन्ना मुखय्यरा, कि ऐसी औरत को इख्तियार दिया जाएगा, वो जिस शोहर के साथ रहना पसंद करे उसका इंतखाब कर ले। तो ऐसी सूरत में वो औरत तख्तार अहसन खुल्किन, ऐसे खावंद को पसंद करेगी जो दुनिया में बेहतर अखलाक वाला था, यानी उसके साथ अच्छा सलूक करता था। और फिर फरमाया, ए उम्मे सलमा, उम्दा अखलाक दीन और दुनिया में बेहतरी का सबब बनता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि जन्नत में जाने वाले मर्द औरतें हमेशा जवानी की हालत में रहेंगे और वक्त गुजरने के साथ उनमें कोई तगय्युर नहीं आएगा। तो फरमाया कि जन्नती मर्द बेरेश, यानी बगैर दाढ़ी के, तुरंगी आंखों वाले 30-35 साल के हिस्से में होंगे और उनके जिस्म पे बाल नहीं होंगे। ये लोग अपने जद अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में होंगे। कदो कामत उन्हीं की कदो कामत के मुताबिक होगा और औरतें भी हमेशा हम उम्र होंगी, मोहब्बत करने वाली होंगी। ये उन लोगों के लिए इनाम का जिक्र है जिनको नामा आमाल जो है दाएं हाथ में मिलेगा। फिर फरमाया, ऐसे लोग सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, पहले लोगों में से कसीर तादाद में होंगे, वसुल्लतुम मिनल आखिरीन, और पिछले लोगों में भी कसीर तादाद में होंगे। पहली उम्मतों का जिक्र हो या इस उम्मत के पहले लोगों का, असहाबुल यमीन जो है बकसरत होंगे। साकिबी साबिकीन के बारे में भी बयान कर दिया कि वो पहलों में ज्यादा और पिछलों में कम होंगे, मगर असहाब यमीन पहलों और पिछलों में सबसे ज्यादा तादाद में होंगे। अल्लाह ताला ने उनको मिलने वाले इनामात का भी जिक्र फरमा दिया। ठीक है। अस्हाबुश्शिमाल इमा अस्हाबुश्शिमाल, यहाँ तर्जुमा तो हमने पढ़ लिया है, तफसीर इंशाल्लाह इसकी कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तफसीर जो है कल पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।